Hello everyone. Today we are going to start chapter number 4, Simple Equations of class 7th. Let us start with discussing what are variables. A variable takes on different numerical values. Its value is not fixed. Means what? A particular thing whose value keeps on changing. Variables are denoted usually by letters of alphabet such as X, Y, Z, L, M, N and P. Okay, so any of the alphabets can be used to represent a variable, and wherever variable is coming, it means that the value of that particular thing keeps on changing. That is not going to be fixed. It can possess any value according to the given situation or condition. Now, what are algebraic expressions? As we have already learned in class 6, what are algebraic expressions? These are formed by variables or from variables, and these expressions are formed by performing operations like addition, subtraction, multiplication, division on variables. Means what? हमारे पास जो variables हैं और जो constants हैं, we know that constants are what जिनकी value बदलती नहीं है, variables are what जिनकी value बदलती रहती है. तो इनके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के साथ साथ जो एक्सप्रेशन फॉर्म होता है दैट इज़ नोन एज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. फॉर एग्जांपल, अगर मैं दो टर्म्स ले लूँ जिसमें से एक टर्म है 3x और एक टर्म है सपोज 2, तो इस पे अगर मैं एडिशन परफॉर्म करूँ इन दोनों टर्म्स पे, तो ये क्या बन जाता है? एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस. ओके, ज़रूरी नहीं है उसमें एक ही वेरिएबल हो सकता है हमारे पास में दो वेरिएबल्स का कोई एक्सप्रेशन हो लाइक दिस. ओके, सो दिस इज़ व्हाट एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, और जिसमें अलग अलग टर्म्स के बीच में वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज़ एन इक्वेशन? An equation, there is always an equality sign. An equation is a condition on a variable. The condition is that two expressions should have equal value. Means what? Just now we studied what are algebraic expressions, and when we have two such expressions and they are differentiated with the help of an equal to sign, then we call it as an equation. Okay, for example, in the last expression, in the last slide I wrote 3x plus 2 is an expression. So similar two expressions I will take. Suppose 3x plus 5 is equals to 3. Okay, so this is an equation, and we know that if we talk about an equation, we have variables, we have constants, and we have a mathematical operation, and we have an equality sign in between. Okay, and note that one variable should be present in the expression. Okay, the condition is that two expressions should have equal value. दोनों साइड जो LHS और RHS हमारा बन रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों की वैल्यूज़ इक्वल होनी चाहिए. मतलब आफ्टर सॉल्विंग फॉर the LHS separately and RHS separately, the value of both the expressions on both the sides should be equal. Okay, and the equation should be having a variable in it. If we interchange the position of the expressions from LHS to RHS or vice versa, the equation remains same. Means what? If I am writing 3 is equals to 3x plus 5, then also the expression remains the same. It doesn't have any change in it. Okay, means what? If we are interchanging left hand side and right hand side amongst each other, it will not change the equation at all. Now note that at least one of the two expressions must contain variable. That I have already told you. जो expression हमने form किया है, इसमें LHS में भी expression है, RHS में भी expression है. दोनों में से एक side में आपका एक वेरिएबल प्रेजेंट होना चाहिए. Then only it will form an algebraic expression, otherwise not. Okay, so it may have variables on both the sides, but it is necessary that at least on one side there should be a variable present.
Okay, so let me write another expression. 3x plus 2 is equals to 4x plus or 4x minus 1. So we can see that this is what? This is a variable because its value is not fixed. This is what? Multiplied with x, and these two are what? Coefficients of these variables. Coefficients matlab a number which is multiplied with the variable. And what is this? You can see this and this. These are constants present. Okay, now if you see that 3x plus 2, this is an expression. Okay, or we can say that algebraic expression. 4x minus 1, this is also an expression. Okay, but if I am writing 3x plus 2 is equals to 4x minus 1 means दोनों expression को मैंने separate किया, equate किया एक equality sign से. So now this has become an equation. Okay, so this is what the LHS side, this is the LHS side, this is the RHS side. अगर आप इन दोनों को interchange भी कर दोगे means what? If you are writing 4x minus 1 is equals to 3x plus 2, then also equation में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, equation remains the same और इसको solve करने पे जो variable की value आएगी वो भी नहीं बदलेगी, it will remain the same. Now what is an balanced equation? So balance का मतलब है बराबर. Okay, तो यहाँ पे हमारे पास में ये जो दो पैन्स हमने वेइंग बैलेंस के रिप्रेजेंट किए हैं, एक पैन रिप्रेजेंट कर रहा है LHS को और एक पैन रिप्रेजेंट कर रहा है RHS को. तो अगर लेफ़्ट साइड का पैन और राइट हैंड साइड के पैन पे दोनों साइड में सेम वेट्स होते हैं, इन दोनों साइड्स में जब सेम वेट्स होते हैं तो हम कहते हैं कि ये वेइंग बैलेंस बैलेंस्ड कंडीशन में है. ओके, अगर आप इधर पे थोड़ा सा भी वेट फिर इंक्रीज़ करोगे तो ये डिसबैलेंस होगा, इधर में भी वेट अगर इंक्रीज़ करोगे तो भी डिसबैलेंस होगा, या डिक्रीज़ करोगे तो भी डिसबैलेंस होगा. तो ये तब तक बैलेंस में रहेंगे जब तक दोनों में सेम वेट्स हैं. सेम अगर हम इक्वेशन की बात करें, LHS और RHS की वैल्यू जब तक सेम रहेगी तब तक ये बैलेंस रहेगा. अगर हमने कोई ऐसा फेरबदल कर दिया कि LHS में जो वेरिएशन किया वो RHS में नहीं किया, तो उस सिचुएशन में जो इक्वेशन है वो हमारी बैलेंस्ड नहीं रहेगी. सो व्हेन LHS ऑफ इज इक्वल्स टू RHS ऑफ एन इक्वेशन देन इट इज़ सेड टू बी बैलेंस्ड इक्वेशन. जैसे कि अगर हम बोले 5 + 2 इज इक्वल टू 7, तो LHS में 5 + 2 है और RHS में 7 है, दोनों तरफ वैल्यू 7 7 है. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड हैं. नाउ बैलेंस्ड इक्वेशन में क्या क्या ज़रूरी है? इफ़ वी ऐड सेम नंबर टू दी बोथ साइड्स, कब कब बैलेंस्ड इक्वेशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा, कब तक इक्वेशन बैलेंस्ड रहेगी? टिल वी ऐड द सेम नंबर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में हम सेम नंबर ऐड करें. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास एक इक्वेशन है 2x + 1 इज इक्वल्स टू 5, तो इस इक्वेशन में अगर मैं 4 दोनों तरफ ऐड करूँ तो इक्वेशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा. ओके, नाउ इफ़ वी सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम बोथ द साइड्स, अगर दोनों साइड से मैं सेम नंबर, मान लो मैंने यहाँ पे -3, दोनों साइड से -3 किया तो भी बैलेंस्ड इक्वेशन रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. नाउ इफ़ वी मल्टीप्लाई द सेम नंबर ऑन बोथ द साइड्स, इसका क्या मतलब हुआ? मान लो हमने यहाँ पे LHS और RHS दोनों में ही हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसी एक सेम नंबर से, दिस इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 6, तो उससे भी इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. Okay, and last but not the least, if we divide the same number from both the side, then also it will not hamper the equation. Means what? अगर मैं यहाँ पे पूरी equation को दोनों साइड सेम नंबर से डिवाइड कर दूँ
तो भी इक्वेशन हमारी बैलेंस रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. ओके, नाउ हाउ कैन वी फाइंड द सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन? Any value of the variable which satisfy the equation is the solution of the equation. So equation की solution होती क्या है? हमने अभी बात की कि equation में एक variable present होता है. एक simple equation में एक variable होना ज़रूरी है कम से कम. तो उस variable की उस condition में क्या value है, that is known as the solution of an equation, या उस equation की solution. Okay, अब solution निकालेंगे कैसे? दो methods हैं हमारे पास में. पहला, by adding or subtracting the same number to both the sides of the equation as we have seen above, that the equation will remain the same. क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जो भी हमारी इक्वेशन है उनके दो जो LHS और RHS साइड्स है उसमें अगर हम सेम नंबर ऐड करते हैं या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे इक्वेशन के बैलेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम वैसा कर सकते हैं. और दूसरा मेथड है ट्रांसपोजिंग. वन बाय वन हम इन दोनों मेथड्स को सीखते हैं. पहला मेथड जो है बाय सब्ट्रैक्टिंग और एडिंग द सेम नंबर ऑन टू द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन. सो इसमें क्या होगा, तो सपोज हमारे पास में एक इक्वेशन है 3x + 2 = 7. तो अगर मैं इस साइड को और इस साइड को बैलेंस करना चाहती हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे वेरिएबल को आइसोलेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है. तो इस 2 को अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 को ना सिर्फ LHS से बल्कि RHS से भी रिमूव करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन में कोई फ़र्क ना पड़े. ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम -2 करेंगे ताकि LHS से 2 हट जाए और हम x को आइसोलेट कर सकें. और 2 को हटाने के लिए हम डायरेक्टली यहाँ से -2 नहीं कर सकते. अगर हमने सिर्फ LHS से -2 किया, RHS से नहीं किया तो इक्वेशन डिसबैलेंस्ड हो जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते. तो हम अगर LHS में -2 कर रहे हैं तो हमें RHS में भी -2 करना पड़ेगा. तो उस अकॉर्डिंग हमारी जो इक्वेशन अभी आएगी वो आएगी 3x = 7, 3x = 5. ओके, अब आप देख रहे हो अभी भी x आइसोलेट नहीं हुआ है, x की डायरेक्ट वैल्यू नहीं आ पा रही है, इसके साथ 3 है इन मल्टीप्लिकेशन. और अगर मैं इस 3 को रिमूव करना चाहूँ तो व्हाट शुड आई डू, आई शुड डिवाइड दिस पर्टिकुलर टर्म बाय 3. लेकिन सिर्फ LHS में 3 से डिवाइड करने से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि अगर हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन LHS में कर रहे हैं तो हमें RHS में भी करना पड़ेगा. और अगर हम RHS में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं तो हमें LHS में भी करना पड़ेगा. तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशंस को, दोनों तरफ के एक्सप्रेशंस को 3 से डिवाइड करेंगे. तो यहाँ से आपका जो x है वो एलिमिनेट होकर के अकेला रहेगा, यहाँ पे आइसोलेट हो जाएगा और RHS में हमको वैल्यू मिलेगी 5/3. तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की इस मेथड से वैल्यू आई है, इक्वेशन की वैल्यू आई है x = 5/3. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. x की वैल्यू 5/3 गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है. लेट अस सी व्हाट इज द सेकंड मेथड, दैट इज द ट्रांसपोजिंग मेथड. In this method we transpose the number from one side of the equation to the other side so that all the terms with variable come on one side and all the constants come on the other side. While transposing the number, the sign of the terms will get changed, that is negative will become positive and positive will become negative. What does this means? Suppose again I am taking the previous equation only, 3x + 2 = 7. So let me write 3x + 2 = 7. Now transposing means what? We will take variables on one side, constants on other side. So in this expression we have this term with variable and this is the constant term, and on RHS we just have the constant term. तो LHS में से इस कांस्टेंट को हमें हटाना पड़ेगा. हटाने का मतलब अगर हम उसे यहाँ से ले जा कर के इस तरफ रख देते हैं तो ये लेफ़्ट साइड में केवल 3x बचेगा. तो अगर हमने ऐसा किया तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हम इसको इस तरफ ट्रांसपोज कर रहे हैं तो हमारे पास इक्वेशन आएगा 3x = 7 - 2. अब 2 क्योंकि इधर पॉजिटिव में था RHS में जाएगा तो ये विद नेगेटिव साइन जाएगा.
अब हमारे पास में x के साथ अभी भी 3 जो है वो इन मल्टीप्लिकेशन है, तो 3 जब इधर ट्रांसपोज होगा तो वो डिवीजन में जाएगा। आप याद रखिएगा, अगर एडिशन का टर्म दूसरे तरफ जाता है तो वो निगेटिव होता है, निगेटिव टर्म अगर RHS में जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का टर्म अगर दूसरे साइड जाएगा तो वो डिवीजन में जाएगा ट्रांसपोज होके, और अगर डिवीजन का टर्म है तो वो ट्रांसपोज होके मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो आएगा x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इज 5, 5 डिवाइडेड बाई 3। वाई 5 डिवाइडेड बाई 3? बिकॉज 3 वॉज इन मल्टीप्लिकेशन विद x, ऑन गेटिंग ट्रांसपोज टू द अदर साइड इट वेंट इन डिविजन। सो द वैल्यू ऑफ x is what? 5 by 3. So the solution of the given equation is 5 by 3. This is known as transposing. ये जो हम numbers को या variables को side change करा रहे हैं, that is known as transposition. Okay? And I must again repeat, if positive term is transposed, then it becomes negative. If negative term is transposed, then it becomes positive. If division is transposed, then it becomes in multiplication, and if multiplication term is transposed, then it becomes division. Now let us solve some questions from your exercise only, so that we can have a firm concept. So the first question is what? Check whether the value given in the bracket is a solution to the given equation or not. मतलब यहाँ पे जो bracket में values given है variable की, वो इस particular equation का solution है कि नहीं। तो अगर हमें ये decide करना है कि n is equals to 1 solution है कि नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ पे इक्वेशन में n है वहाँ पे n की वैल्यू 1 रख के हमको सॉल्व करना होगा। और जैसे ही हम 1 का वैल्यू सॉल्व करेंगे, n का वैल्यू 1 रख के हम सॉल्व करेंगे, तो जो भी वैल्यू इन दी एंड हमारे पास में आती है वो अगर RHS वाले टर्म से मैच होती है तो n का वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 इज अ सॉल्यूशन, अदरवाइज नॉट। सो लेट अस स्टार्ट टेकिंग LHS. Let us find the value of LHS n plus 5. For n is equals to 1, 1 plus 5 is equals to 6, and 6 is not equals to 19. तो आप देख रहे हो LHS जो है उसकी वैल्यू RHS के बराबर नहीं आई है for the value n is equals to 1. So n is equals to 1 is not the solution. Okay, this is not the solution of the given equation. Now let us check for n is equals to 2. For this equation 7n plus 5 is equals to 19. Again take LHS. LHS is what? 7n plus 5. अब यहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे we have to keep the value of n as 2. So 7 into 2 plus 5. So we will get 14 plus 5, that is equals to 19. So you can see over here 19 is equals to your RHS. Okay, तो since यहाँ पे आप देखोगे LHS का वैल्यू RHS के बराबर आया है, therefore n is equals to 2 जो है वो सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, क्योंकि n का वैल्यू 2 रखने पे LHS में उसकी वैल्यू RHS के बराबर आ रही थी, बैलेंस्ड इक्वेशन थी, दोनों तरफ की इक्वेशन की वैल्यू, दोनों तरफ के एक्सप्रेशंस की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आई, तो फिर वो वेरिएबल का जो वैल्यू हमने लिया था वो करेक्ट है, वो उसका सोल्यूशन है। नाउ देयर इज़ अनदर क्वेश्चन, वी हैव टू राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मतलब अगर हमारे पास में स्टेटमेंट्स गिवन है तो उसको यूज़ करते हुए हम इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज़ 9। तो ईजिली हम समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास में कोई नंबर है x और एक नंबर है 4, उनका सम करना है, मतलब वी हैव टू ऐड देम, तो वो हमें रिजल्ट देगा 9। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन for this statement. Now let us read the second statement. 10 times a is 70. मतलब अगर हमारे पास में कोई वेरिएबल a है उसका 10 टाइम्स हमको 70 वैल्यू देगा, मतलब 10a is equals to 70 will be the required equation for this statement. Okay, now let us see what is the third one. 2 subtracted from y is 8. So
we have to take y, then we have to subtract 2 from it, and then we will get the answer as 8. Remember, if we write 2 minus y is equals to 8, this will become wrong. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लियरली बोला है 2 को सब्ट्रैक्ट करना है y से, ना कि y को 2 से. तो जिससे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उस टर्म को पहले लिखते हैं और जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं वो बाद में आएगा. तो हो सकता है मिस्टेकनली आप ऐसे कर दें, लेकिन ये गलत होगा. करेक्ट वाला फर्स्ट जो मैंने इक्वेशन लिखा है वही होगा, दैट इज y minus 2 is equals to 8. Students often get confused in it, so please read the statement carefully. Now the next one is what? The number b divided by 5 gives 6. तो b नंबर को, कोई है b नंबर, उसको हमें 5 से डिवाइड करना है, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 6. Okay, so this is our required equation according to this statement. Now let us further see one more question. We have to set up an equation in the following cases. This is somewhat a word problem. इसको हमें पढ़ना है और इस condition के हिसाब से we have to formulate the equation. So what is the statement saying? Irfan says that he has 7 marbles, more than 5 times the marbles Parmeet has. Irfan has 37 marbles. So they have mentioned one condition. We have to take m to be the number of Parmeet's marbles. So first of all, we will write let number of Parmeet's marbles is equals to m. Okay, now number of Irfan's marbles is equals to what? 37. This is already given in the question. So according to question, you can see 7 marbles more than 5 times. So 5 times m means what? 5 into m means 5m, and 7 more मतलब plus 7. तो इसको हम इक्वेट करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो क्या लिखेंगे? 5m plus 7 मतलब 5 times m plus 7 एंड दैट इज इक्वल्स टू 37. क्योंकि इरफान के पास टोटल मार्बल्स थे 37 और इरफान ने क्या बोला कि उसके पास 5 टाइम्स परमीत के मार्बल से 7 मार्बल्स और ज़्यादा हैं. तो उस अकॉर्डिंग हमारा जो इक्वेशन बन रहा है वो बन रहा है 5m plus 7 is equals to 37. A similar question is there. Lakshmi's father's age is 49 years old. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. So let Lakshmi's age is equals to, सबसे पहले हमें लक्ष्मी की एज सेलेक्ट करनी है. Lakshmi's age is equals to y years. ओके, और फादर की एज कितनी गिवन है? फादर्स एज गिवन है एज 49 ईयर्स. अब इस कंडीशन के हिसाब से हमें फादर की एज इन टर्म्स ऑफ लक्ष्मीज एज निकालनी है. तो 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज. तो 4 ईयर्स ओल्डर मतलब इसमें मतलब हुआ आपका +4 हो जाएगा, और 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज मतलब 3y. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फादर की एज 3y + 4 इज इक्वल्स टू 49 होगी. क्योंकि फादर की एज है 4 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज. तो 3y इज 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज प्लस 4 इज 4 ईयर्स ओल्डर. इस वैल्यू से और 4 साल ज़्यादा है फादर की एज, एंड टोटल फादर की एज कितनी गिवन है? 49. तो ये LHS का एक्सप्रेशन फॉर्म करेगा, ये RHS का. दोनों को इक्वेट करने पे हमको रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी. सो इन दिस मैनर वी हैव लर्नड दैट हाउ कैन वी फॉर्म द इक्वेशंस reading the statements given, or how can we read the expression or equation given. Okay, so in the coming questions or in the coming exercises we will be studying that how can we find the values of the variables given in the equation. Till now we just have covered how can we form a simple equation. Thank you.